Assalamu alaikum. Today we are discussing basic topics of P1 like variation and function. Acha ji. First we are discussing some question of variation, then we will start discussing the function. Acha ji. So the variation, what's mean by variation? Variation means it's divided into two parts: directly proportional and inversely proportional. Directly proportional means when you increase the two things, when you increase one thing, the other thing is also increased. When two things are increasing at the same time or decreasing at the same time, such type of relation is said to be directly relation or directly proportion. जैसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और उसके प्राइस, जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होंगे, जितनी ज्यादा चीजें होंगी, उसके प्राइस भी उतने ज्यादा होंगे, और जितनी कम चीजें होंगी उसके प्राइस भी उतने ही कम होंगे. Similarly, inversely proportional means when you increase one thing, the other thing is decrease. Such type of variation is inversely proportional. जैसे कि speed and time. अगर एक specific destination में आप अगर speed बढ़ाएंगे तो it take less time, speed कम करेंगे तो it takes more time. तो एक चीज बढ़ाएं और दूसरी चीज कम हो जाए, और एक चीज कम करें और दूसरी चीज बढ़ जाए. This is called inversely proportional. ठीक है. अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन की? लेट्स चेक. अच्छा जी. So in the first part, they've mentioned that y is inversely proportional to the square of x. So you need to find the equation first. Y, this is the sign of proportional, either directly or inversely. In both the cases, you have to put this sign. अगर examiner inversely बोल रहा है तो you need to put जो भी square of x है या x है, तो आपने उसको कहाँ put करना है? वो आपने put करना है डिनोमिनेटर में. किस कंडीशन में? जब एग्जामिनर इनवर्सली बोल रहा है. अगर यही डायरेक्टली बोलता तो हम इसको ऐसे लिखते, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x. ये डायरेक्टली की कंडीशन है, और अगर इनवर्सली बोलेगा तो सेम चीज डिनोमिनेटर में आएगी. ओके. सो सबसे पहले तो आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है. व्हेन यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनल. जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, so you need to put the constant of proportionality. Now this is the equation. Now the first step after making an equation is to find the value of k by substituting the value of x and y from the given table. The table which is mentioned in the question, कुछ टाइम पे टेबल गिवन होता है और कुछ टाइम पे x और y की वैल्यूज गिवन होती है. तो हर कंडीशन में इक्वेशन बनाने के बाद आपने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सबसे पहले k फाइंड आउट करना है. The first step is to find out the value of k by substituting the value of x and y. तो हम y की जगह 3 यहाँ पे लिखा है, x is equal to 2 और y is equal to 3, x is equal to 2 and y is equal to 3. By substituting the value of x and y, you need to find the value of k first. The value of x is 2, x having square, so 2 square. 3 is equal to k, 2 square means 4. 4 is dividing over here, it will be multiply. 4 times 3, 12. So first step has been done. You got the value of k. Your equation become y is equal to k will replace by its value, which is 12 over x square. Now after getting the value of k, you got the equation of y in terms of x. तो इसको फॉर्मूला फॉर y इन टर्म्स ऑफ x कहते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x कहते हैं, इसको इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y कहते हैं. तो हर कंडीशन में द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k आफ्टर मेकिंग द इक्वेशन, and then substitute the value of k and make the equation which is connecting x and y. So this is the first step. Okay. अब उसके बाद एग्जामिनर x देगा, y मालूम करने का कहेगा, y देगा, x मालूम करने का कहेगा. तो जो भी अब आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है वो इस इक्वेशन में करनी है k मालूम करने के बाद. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, एग्जामिनर ने, अच्छा यही सेम वैल्यू, ये k की वैल्यू आप इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन आसान 2 और 3 तो हमने उससे वहां से निकाल लिया.
ठीक है, अब एग्जामिनर ने p की वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब p हमारे पास मौजूद है x p और y 48। अब p की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपने x की जगह p पुट करना है और y की जगह 48 पुट करना है। लेट्स चेक, इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने p की वैल्यू मालूम करनी है, सो y इज इक्वल्स टू 48 एंड x इज इक्वल्स टू p, x हैविंग स्क्वायर, सो p की जगह स्क्वायर आ जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमें p मालूम करना है तो p को न्यूमरेटर में होना चाहिए। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 ओवर 48, सो 12 टाइम 1, 12 टाइम 4, 48, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4। अब स्क्वायर का कैंसिल करना है तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। p 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो p इज इक्वल्स टू, रूट जब हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, तो p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ओवर 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ p when y is 48. This is the value of p when y is 48. So this is the way to attempt the question of variation. एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर फंक्शन की तरफ आएंगे। ये भी इनवर्सली का है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करते हैं, ये भी इनवर्सली का है, ये आ गया डायरेक्टली का। सो क्वेश्चन इज y where is directly as square of x. तो as I told you y, this is the sign of proportional। अगर डायरेक्टली बोलेगा तो न्यूमरेटर में आएगा, स्क्वायर ऑफ एक्स तो स्क्वायर ऑफ एक्स, अगर क्यूब ऑफ एक्स बोलेगा तो क्यूब ऑफ एक्स आएगा, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बोलेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आएगा। तो जो भी एग्जामिनर बोलेगा वो आपने लिखना है, अगर डायरेक्टली बोलेगा तो न्यूमरेटर में, अगर इनवर्सली बोलेगा तो डिनोमिनेटर में। y जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं के एक्स स्क्वायर, यह आपका इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब the first step is after making the equation is by substituting the value of x and y, get the value of k। अब y आपके पास है 1/5 when x is equal to 1/2। अब आपने x और y की वैल्यू पुट करनी है और k निकालना है, x की जगह 1/2, y की जगह 1/5 and you need to find the value of k first। so y की जगह 1/5 पुट कर दिया, y की जगह 1/5, k सेम, x की जगह 1/2, x having square 1/2 square, 1/5 is equals to k, 1 का square 1, 2 square 4, 4 is dividing over here, it will be multiplied by 1, 4/5 is equals to k। So the first step is to get the value of k, जो हमने मालूम कर ली है, ये k की वैल्यू आ गई। Now after finding out the value of k, after got the value of k, अब आपने क्या करना है, जो आपने इक्वेशन बनाई थी उसमें k की जगह k की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आपका हो गया पहला स्टेप, इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, k की वैल्यू निकाल के k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ सेकंड स्टेप इज x या y में से कोई एक वेरिएबल एग्जामिनर देगा, जैसे x 10 दिया हुआ है और y मालूम करने का कह रहा है, तो x या y में से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू एग्जामिनर दे देगा और दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करने का कहेगा। तो y फाइंड आउट करना है और x की जगह x की वैल्यू दे दी 10 स्क्वायर, y फाइंड आउट करना है, 10 square means 10 multiply itself twice, 5 times 1, 5 times 2, 4 10 the 42 the 80, so y is equal to 80। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ओके, सो दिस इज द वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। डायरेक्टली का भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया मैंने, इनवर्सली का भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया, सब तरीके से स्टेप यही रहेगा। अब बाकी इन दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, ये क्वेश्चन आपने करना है और दूसरा ये क्वेश्चन आपने करना है। ओके, सो ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। ना मैं दो क्वेश्चन फंक्शन के डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बेसिक टॉपिक्स पे आएंगे। फंक्शन का पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये क्वेश्चन है फंक्शन।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस, इसके सिर्फ मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, लेक्चर इसका डिटेल हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 7, दे आर आस्किंग टू फाइंड एफ ऑफ 3 minus 2. इट मीन्स दैट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डोमेन x है और डोमेन की जगह x की जगह क्या आ रहा है 3.2. इट मीन्स दैट you need to replace x by 3.2. 3 x will replace by 3.2 plus 7. So it will be 3, 6, 3 times 3, 9, 9.6 plus 7. It will be 9 plus 7, 16.6. So first answer, which is of 1 mark, is 16.6. Okay. Now, inverse, f inverse of x. फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइंड f इनवर्स ऑफ x. देखो बेटा, इनवर्स के दो स्टेप्स होते हैं इनवर्स फाइंड आउट करने के. स्टेप नंबर 1, जैसे सिंपल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में पहले फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? अगर सिंपल फंक्शन में डोमेन x और रेंज y होता है तो इनवर्स फंक्शन में यही चीज रेसिप्रोकल हो जाती है. x y की जगह आ जाता है, y x की जगह आ जाता है. अगर सिंपल फंक्शन में 3.2 पुट करने पे 16.6 आया तो इनवर्स फंक्शन में यही चीज उल्टी हो जाएगी. 16.6 पुट करेंगे तो 3.2 आंसर आएगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन. ठीक है. तो इनवर्स फंक्शन का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, जो एक्स वाई होता है वो एक्सचेंज हो जाते हैं वाई एक्स में. ठीक है. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एफ ऑफ एक्स को कहते हैं वाई. तो ओरिजिनल इक्वेशन है आपके पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 7. इनवर्स के दो स्टेप्स होते हैं. स्टेप नंबर 1, एक्सचेंज y एंड x. y को x लिख देंगे और x को y लिख देंगे. ये आपका इनवर्स हो चुका है. लेकिन द स्टैंडर्ड फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ द फंक्शन इज टू मेक y द सब्जेक्ट. अब इनवर्स भी हो या सिंपल फंक्शन हो, y सब्जेक्ट होना चाहिए. अब y को सब्जेक्ट बना लेते हैं. सेकंड स्टेप क्या है? मेक y द सब्जेक्ट. y सब्जेक्ट मतलब y को अकेला कर लेते हैं. x माइनस 7 इज इक्वल टू 3y. x माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू y. ये y सब्जेक्ट बन गया. तो अब आपका जो फंक्शन बना है ये है इनवर्स फंक्शन विच इज x माइनस 7 अपॉन 3. तो ये आपका हो गया इनवर्स फंक्शन. ये भी हर साल P1 में भी आता है और अक्सर P2 में भी आता है. तो उसके एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं. एक ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. f of x is equals to 2x plus 5 upon 3x. f of x, f of x, इसका मतलब है x की जगह जो है आपका आ रहा है -2. डोमेन आपका -2 है. तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे -2 प्लेस कर देना है. -2 पे क्या आंसर आएगा, रेंज क्या आएगा, वो फाइंड आउट करना है. 2 टाइम -2 -4 प्लस 5 अपॉन -6. तो आपका आंसर आया 1 ओवर -6 विच इज -1/6. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका. ये आसान होता है 1 मार्क का. एक्स की जगह डोमेन की वैल्यू पुट करनी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स की वैल्यू गिवन होती है तो आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. ओके. अच्छा जी. सेकंड स्टेप, इनवर्स ऑफ एक्स. जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, सिंपल फंक्शन में अगर एक्स वाई होते हैं तो इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाता है, वाई एक्स. ठीक है. सिंपल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में ये फर्क होता है. तो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स को हम y कहते हैं. ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x. ठीक है. तो स्टेप नंबर 1, एक्सचेंज y बाय x एंड x बाय y. दिस इज स्टेप नंबर 1. देन in function, the standard form of function always y is the subject. Now make y the subject. इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, हमेशा y सब्जेक्ट होता है. तो y सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्ट चेंज करना हो आपको, जब भी सब्जेक्ट चेंज करना हो, आपने फ्रैक्शन खत्म करना होता है. मतलब डिनोमिनेटर जो है वो खत्म करना है. अब यहाँ ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3xy इज इक्वल टू 2y प्लस 5. y को सब्जेक्ट बनाना है. अगर जिसको सब्जेक्ट बनाना हो वो एक से ज्यादा बार हो तो उनको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं. 3xy
माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जिसको सब्जेक्ट बनाना है वो प्लस माइनस नहीं हो सकता, माने लाइक टर्म्स नहीं है, तो y कॉमन ले लो। y कॉमन लिया तो बचा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 5। अब हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, 5 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, y सब्जेक्ट बन गया आपका। तो आपका इनवर्स फंक्शन आया 5/3x माइनस 2, एज सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, क्या करना है आपने, सबसे पहले देखो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/3x। स्टेप नंबर 1, एक्सचेंज x एंड y। मैंने जहां पे y था वहां पे x लिख दिया, और जहां पे x था वहां पे y लिख दिया, जहां पे x था वहां पे y लिख दिया। y को x से स्वैप कर दिया और x को y से स्वैप कर दिया। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन में और सिंपल फंक्शन में यही फर्क होता है। सिंपल फंक्शन एक्स वाई होता है और इनवर्स फंक्शन वाई एक्स होता है। ठीक है, वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है, मीन्स अगर सिंपल फंक्शन पे 1 पे 2 आ रहा है तो इनवर्स फंक्शन पे 2 पे 1 आएगा। ठीक है, आंसर। अच्छा जी, अब एक्स और वाई को स्वैप करने के बाद ये इनवर्स फंक्शन हो चुका है, लेकिन फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में वाई सब्जेक्ट होना लाजमी है। तो वाई को सब्जेक्ट बनाते हैं, नाउ मेक वाई दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए पहला स्टेप होता है फ्रैक्शन को खत्म करना, माने अगर कोई डिनोमिनेटर है उसको खत्म करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अगर सिंगल फ्रैक्शन नहीं है तो पहले सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर सिंगल फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3x, यहाँ 3y यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके x से मल्टीप्लाई हो गया। फिर जिसको सब्जेक्ट बनाना है, अगर वो एक से ज्यादा बार है, जैसे y को सब्जेक्ट बनाना है और y 2 बार है, तो इनको एक तरफ शिफ्ट कर दो। एक तरफ शिफ्ट करके अगर ये प्लस माइनस हो सकते हैं तो कर दो, अगर नहीं हो सकते तो y कॉमन ले लो। जैसे अभी y कॉमन लिया, बचा 3x माइनस 2, तो 3x माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, y सब्जेक्ट बन गया। दिस इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x। ओके, लास्ट क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन का। अब यहाँ पे अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है f(11), माने डोमेन भी दिया हुआ है, मतलब x की जगह आप 11 पुट करो तो y आपका 7 आएगा। इसका मतलब ये है, मैंने when you put domain 7 you will get the range, when you put domain 11 you will get the range 7। जब आप डोमेन x की जगह 11 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। तो चेक करते हैं कैसे पुट करते हैं इसको। f(11), इसका मतलब है जहां पे x है वहां पे 11 पुट कर दो। 3x will replace by 11 माइनस k अपॉन 4। नाउ f(11) जो है ये पूरा ये इक्वल है 7 के, तो f(11) को पूरा हटा के इसकी जगह इस रेंज की वैल्यू जो है वो क्या है 7, तो इसकी जगह आप लिख देंगे 7 इज इक्वल्स टू 11 टाइम 3 33 माइनस के अपॉन 4। अब जब भी सॉल्व करना हो या सब्जेक्ट चेंज करना हो तो पहला स्टेप होता है फ्रैक्शन को खत्म करना। 7 4 28, 33 माइनस के की वैल्यू फाइंड आउट करने का कहा है एग्जामिनर ने, तो माइनस के यहाँ के प्लस के हो गया, 28 वहां जाके माइनस 28 हो गया, k इज इक्वल टू 5। k इज इक्वल टू 5 आ गया। अब आपकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 3x, k की जगह 5/4। अब इसको इनवर्स मालूम करने का कह रहा है, इनवर्स का वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन में समझाया। अब आपने ये क्वेश्चन खुद ने करना है, पहले एक्सचेंज करना है एक्स और वाई को, और फिर वाई को सब्जेक्ट बनाना है। होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। वेरिएशन और फंक्शन मैंने अभी बेसिक डिस्कस किया है। योर फर्स्ट स्टेप इज आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। 40 मार्क्स अराउंड, 30 टू 40 मार्क्स अराउंड बेसिक्स में से आते हैं, वो अपना स्ट्रॉन्ग करो, फिर हल्के हल्के मुश्किल चीजों पे आओ, आपका पूरा पेपर 1 हो जाएगा आसानी से। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।